اور اللہ کا علم ما یلیق بشانی ہی ہے، جیسے اس اللہ کی شان ہے اس شان کے لائق اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما جاننے والے ہیں۔ چند ایک باتیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی کے اندر آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اللہ تبارک و تعالی کے علم کو سامنے رکھ کر اللہ کی معرفت، اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما کی ہمیں پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی روشنی کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما العلیم العالم العلام ایسا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، مالک کائنات خالق ارض و سما ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ لقمان اور سورہ لقمان کی آخری آیہ مبارکہ ہے، بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ، عموماً آپ اس کا تذکرہ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ آئیے آج اللہ کی معرفت کے حوالہ سے بھی اس آیت کریمہ سے چند باتیں سماعت فرمائیے۔ مالک کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب واقعہ ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ جو حدیث جبریل کے نام سے معروف اور مشہور ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں جبریل امین انسانی شکل کے اندر اجلے کپڑے پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور لوگ تعجب کر رہے تھے کہ یہ آدمی ہماری بستی کا بھی نہیں لگتا، آس پاس کے کسی علاقے کا بھی نہیں ہے مسافر، لیکن اس کے جسم پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے، لباس اس کا بڑا اجلا ہے، اس کے بال کوئی بکھرے ہوئے نہیں ہیں، کوئی گرد و غبار اس کے اوپر نظر نہیں آ رہی، ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہیں سے قریبی سے کہیں سے نکل کر آ گیا ہے۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، زانوئے تلمذ ہو کر بیٹھ گئے، جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اس طرح جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ ٹیک دیا، نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کر جبریل امین نے مختلف قسم کے سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے یہ بتائیے، متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جیسے تم جانتے ہو ویسے ہی میں جانتا ہوں، جیسے تمہیں قیامت کا علم نہیں ہے ایسے مجھے بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ پھر جبریل امین کہتے ہیں آپ ہمیں قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں بتا دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں جبریل امین کو بتا دی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بکریاں چرانے والے چرواہے گدڑیے، جن کا بود و باش، جن کا کھانا پینا، جن کا نظام زندگی اور نظام معیشت صرف بکریوں کے اوپر چلتا ہوگا، بکریاں چرانے والے چرواہے یہ عظیم الشان اور عالی شان بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے اوپر فخر کریں گے۔ قیامت کی علامات میں سے یہ ایک نشانی اور علامت ہے۔ آج یہ قیامت کی نشانی رونما ہو چکی ہے۔ عرب کے صحرا میں بسنے والے بکریاں اور اونٹ چرانے والے چرواہے آج دنیا کی بڑی بڑی اور بڑی سے بڑی اور بلکہ سب سے بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ ایسا وقت ہوگا قیامت کے قریب کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، فخر محسوس کریں گے، پاؤں سے ننگے، جسموں سے ننگے، اور پھر بکریاں چروانے والے چرواہے عالی شان بلڈنگیں، عمارات اور محلات بنانے کے اوپر فخر کریں گے۔ یہ کیفیت اور حالت آج موجود ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب نے یہ بھی علامت اور نشانی بیان کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ माँ अपनी बेटी को जिसको वो जन्म देगी वो उसकी बेटी उसके ऊपर मालकन बन जाएगी। इसके दो मैंने उलमा ने बयान किए हैं। एक मैंने ये बयान किया है कि औलादें नाफरमान होगी, बागी सरकश होंगी, वो वालिदैन को अपना ग़ुलाम समझेंगे। जिस तरह ग़ुलाम होता है इस तरह औलादें अपने वालिदैन को समझेंगी कि गो कि वो उनके ग़ुलाम और खादम है। दूसरा मैना ये कि जो ग़ुलाम और खादम है वो अपने मालिकों को जन्म देंगे, यानी इज़्ज़त और नमूस ख़त्म हो जाएगी। किसी को इसका पता नहीं होगा कि हकीकत क्या है, औलाद किसकी है, बेटा किसका है, ये बेटी किसकी है। आज हमारे माशरे के अंदर, मशरक़ के अंदर तो अभी इसके अंदर कुछ हया मौजूद है, लेकिन आप मगरब में जाकर देख लें, उनका फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है। उन्हें नहीं पता कि ये जो लड़का जा रहा है, ये जो लड़की है, इसका बाप कौन है, इसके किसके घर के अंदर इसने जन्म लिया है, इसका बाप कौन है, मर्द का पता नहीं है, इल्म नहीं है। ऐसी कफ़ियत और हालत हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे हबीब ने क़यामत की निशानियां बयान की हैं। इस हदीस मुबारका में ये पता चला कि इस रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह ने किसी को इल्म अता किया है, इल्म वही किसी को अता किया है जिनके ऊपर 23 साल जबरील अमीन अल्लाह के पैगाम लाते रहे हैं, वही लाते रहे हैं, उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं है क़यामत कब वाक़या होगी। अगर इसका इल्म किसी को है तो वो एक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता क़यामत कब वाक़या होगी। रब्बे कायनात फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह को पता है क़यामत कब वाक़या होगी, कब ये निज़ाम हस्ती तबाह व बर्बाद हो जाएगा। ये चमकने वाले सूरज चाँद सितारे, ये कहकशाएँ, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। ये सूरज चाँद का निज़ाम, ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम, ये धरती का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। कब ख़त्म होगा किसी को कोई पता नहीं है। अगर इसका हकीकी इल्म किसी के पास है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। आपका और मेरा रब कौन है? अल्लाह अल अलीम है, जो सबसे ज़्यादा जानने वाला है। हर ज़र्रे का जिसे इल्म है उसे पता है कि कायनात कब ख़त्म होगी, क़यामत कब वाक़या होगी। आइए अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वयुनज़्ज़िलुल गैसा, कि बारिश कब नाज़िल होगी। इसका हकीकी इल्म, असली इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता बारिश कब नाज़िल होगी। ये इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास मौजूद है। हाँ, कोई कह सकता है आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है, जनाब महकमा मौसमियात वाले कबल अज वक्त बता देते हैं कि जनाब फ़लाँ वक्त बारिश होगी, फ़लाँ इलाके में बारिश होगी। लेकिन अल्लाह का कुरान कह रहा है वयुनज़्ज़िलुल गैसा, तेरा मेरा यकीन और ईमान होना चाहिए। ये महकमा मौसमियात वाले पेशगोइयाँ करते हैं, कभी सच्ची होती हैं, कभी झूठी होती हैं, कभी बारिश की पेशगोई होती है लेकिन बारिश नहीं होती, कई दफ़ा हो भी जाती है। लेकिन याद रखें हकीकी इल्म अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और यहाँ पे ये भी बात समझते जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश को नाज़िल करने का इख्तियार रखते हैं। आज हमने आले इस्तेमाल कर लिए हैं, हमने आज ऐसी जदीद मशीनरी इस्तेमाल कर ली है, ऐसे आलात इस्तेमाल कर लिए हैं जिससे हमें बादलों का रुख का इल्म हो जाता है कि फ़लाँ तरफ बादल रुख कर रहे हैं, फ़लाँ तरफ बादल आ रहे हैं। मुमकिन है कि ऐसे बादल जिनकी कैफियत और हालत ये होती है, ये बारिश बरसाते हैं, इनके अंदर इतनी मिकदार के अंदर बारिश होती है। आज ऐसे आले निकल आए हैं, साइंस ने तरक्की की है, उन आलों की निस्बत से ये पहचान लेते हैं, पता कर लेते हैं कि इन बादलों से बारिश होगी या नहीं होगी, किस मुकाम के ऊपर होगी, किस तरफ रुख करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, तो इनसे पानी के कतरात टपकेंगे। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अल्लाह की पहचान करवाना चाहता हूँ कि अल्लाह कौन है। वयुनज़्ज़िलुल गैसा, जो इन बादलों के रुख मोड़ने वाला है, जो इन बादलों के अंदर पानी के कतरात को महफूज करने वाला है, वो अल्लाह की ज़ात है। वयुनज़्ज़िलुल गैसा, तूने तो बादलों के रुखों से पता कर लिया है इसका रुख इस तरफ है, फलां जगह पे जाकर ये बारिश बरसाएगा। लेकिन मेरा अल्लाह वो है जो इन बादलों को भेजता है, इन्हें फेरता है, इन्हें फेराता है, इनके अंदर पानी को भर देता है। हाँ, मेरे अल्लाह की ज़ात वो है जो इन बारिश के कतरात को, जो बारिश के कतरात ज़मीन पे गिरते हैं, अल्लाह
तबारक व तआला इस बात का भी इल्म रखते हैं। तेरी साइंस ने आज तक यहाँ पे तरक्की नहीं की है कि ये बारिश के कतरात किसी के लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे या नुकसानदेह साबित होंगे। ये बारिश के कतरात किसी जगह के ऊपर गिर कर फसल के लिए बेहतरीन साबित होंगे या फसल का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, कोई नहीं जानता। ये इल्म अगर किसी के पास है तो मेरे अल्लाह के पास है। ये बारिश के कतरात ज़मीन पे गिरेंगे, उस ज़मीन के हिस्से को सैराब करेंगे या नहीं करेंगे, या ये बहकर किसी और तरफ चले जाएंगे, हाँ, ये मेरा अल्लाह ही जानता है। व युनज़्ज़िलुल गैसा, वो अल्लाह बारिश को नाज़िल करता है। अल्लाह के इल्म में है कहाँ पे बारिश नाज़िल होगी, उस इलाके के लोगों के लिए कितनी मुफीद होगी। इसको नदियों में, नालों में और जनाब समंदरों में, दरियाओं के अंदर बहाकर अल्लाह तबारक व तआला किसी और मुकाम के ऊपर पहुंचाकर इन पानी के कतरात से जो वजीराबाद की बस्ती के अंदर गिरे हैं, इनको दरियाए चनाब में बहाकर अल्लाह तबारक व तआला किस जगह लेकर जाएंगे, किन लोगों के लिए ये फायदा मंद साबित होंगे, किन के लिए नुकसानदेह साबित होंगे, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। व युनज़्ज़िलुल गैसा, बारिश की बूंद बूंद को वो अल्लाह जानता है। कैसा अल्लाह अलीम है। तेरे पास वो इल्म नहीं है, तेरी साइंस के पास वो इल्म नहीं है, तेरे मेरे आलात के पास वो इल्म नहीं है। अल्लाह मालिक के कायनात, खालिक अर्ज़ व समा ये भी जानते हैं ये बारिश जो नाज़िल होगी इसके अंदर कितनी बूंदें होंगी, कितने बारिश के कतरात ज़मीन के ऊपर गिरेंगे। व युनज़्ज़िलुल गैसा, बारिश की खासियत को भी जानता है, फ़ायदा मंद होगी या नुकसानदेह होगी। बारिश के कतरात और बूंदों को भी जानता है, इसकी मिकदार कितनी होगी, कितने कतरात ज़मीन के ऊपर गिरे हैं। आज तो अंदाज़ा तो लगा लेता है इतनी मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इतने कतरात बादलों से ज़मीन के ऊपर गिरे हैं। लेकिन मेरा अल्लाह ये भी जानता है बादलों से कितने कतरात बरसे हैं, कितने ज़मीन के ऊपर गिरे हैं, कितने पहाड़ों की चोटियों के ऊपर गिरे हैं, कितने लोगों के लिबास के ऊपर गिरे हैं, कितने किस मुकाम पे गिरे हैं, कितने किसी मुकाम पे गिरे हैं। व युनज़्ज़िलुल गैसा, ये है मेरा अल्लाह अल अलीम अल अल्लाम, मेरा मालिक कायनात, खालिक अर्ज़ व समा, आपका और मेरा रब जो ये भी जानता है कि बारिश के कतरात कितने हैं, किस जगह पे गिर रहे हैं और किस किस मुकाम के ऊपर जाएंगे। ये इल्म जिस हस्ती के पास है वो सिर्फ अल्लाह अल अल्लाम, अल्लाह अल अलीम की ज़ात है और किसी की ज़ात नहीं है। कौन है अल्लाह? अल अलीम अल्लाह कौन है? अल आलिम अल्लाह कौन है? अल अल्लाम अल्लाह कौन है? ऐसा इल्म रखने वाली ज़ात है। कुरान मजीद फुरकान हमीद कह रहा है व यअलमु मा फिल अरहाम, वो अल्लाह ये भी जानता है माँ के पेट के अंदर, रहम मदर के अंदर क्या है और कैसा है, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहम के अंदर क्या है, कैसा है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अमूमन हमारे यहाँ जो तर्जमा किया जाता है और लोग करते हैं और उस पर इश्काल भी पैदा हो सकते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चल जाता है बेटा है या बेटी है, हालांकि वो भी कंफर्म नहीं है। बेशुमार केसेस हमारे सामने हैं जो हमारे सामने आते हैं, पहले डॉक्टर कहते हैं बेटा होगा लेकिन पैदा बेटी होती है, डॉक्टर कहते हैं बेटी होगी लेकिन पैदा बेटा होता है। तुम्हारे आलात जवाब दे जाते हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान यहाँ पे हमें हुक्म दे रहा है, बता रहा है, अल्लाह की पहचान करवा रहा है, अल्लाह का इल्म बता रहा है। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहम मदर में क्या है, कैसा है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। अगर यहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ होता ना मन यअलमु मन फिल अरहाम, मन ज़विल अकूल के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये होता है बच्चा है या बच्ची है। अल्लाह तबारक व तआला फरमान है, ये नहीं कहा कि मन फिल अरहाम बेटा है या बेटी है, ये नहीं कहा। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ बोला है माँ, ये माँ मौसूला है जो इस बात का पर दलालत करता है ज़विल अकूल के अलावा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माँ का लफ्ज़ गैर ज़विल अकूल के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कैसा है। तेरी अल्ट्रासाउंड मशीनें ये तो बता सकती हैं, कन्फर्म वो भी नहीं, लेकिन बता सकती हैं बेटा है या बेटी है। लेकिन रब्बे कायनात के कलिमात, अल्लाह की वही, अल्लाह का कलाम का तकाजा ये नहीं है कि सिर्फ ये बताया जाए क्या है, बेटा है या बेटी है। अल्लाह ये नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहे कैसा है, मा फिल अरहाम, कैसा है, फरमा बरदार है, ना फरमान है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सईद है,
शकी है, खुशकिस्मत है, बदकिस्मत है, कोई नहीं जानता सवाए अल्लाह के। अल्लाह जानता है ये वालिदैन के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा या दुनिया के अंदर वालिदैन के लिए रसवाई का सबब बन जाएगा। व यअलमु मा फिल अरहाम, सिर्फ अल्लाह जानता है कैसा है, गोरा है, काला है, अल्लाह जानता है कैसा है, इसकी कैफियत कैसी है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो अल अलीम है, अल अल्लाम है, अल आलिम है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है ऐसा जो अल्लाह तबारक व तआला की बातों को अल्लाह के ऐसे इल्म का अहाता कर सके, जान सके। सारी कायनात से का इल्म अगर किसी के पास है तो अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती और ज़ात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अल्लाह का कुरान, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन, कोई नहीं जानता इसने कल क्या कमाना है। कोई नफ्स नहीं जानता, कोई जान नहीं जानती इसने कल क्या कमाना है, कल इसके साथ क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। अगर जानता है सिर्फ एक अर्श वाला जानता है जो अल्लाह अल अलीम है। अल्लाह अल अलीम के अलावा कोई नहीं जानता कल किसके साथ क्या होने वाला है। अगर इंसान को पता हो कि कल मेरे कारोबार में मुझे खसारा हो जाएगा, अगले दिन बंदा दुकान ही ना खोले, किसी से सौदा करे ही ना। अगर उसे पता हो मैंने घर से बाहर निकलना है, मेरा एक्सीडेंट हो जाना है, कोई बंदा घर से बाहर निकले ही ना, अपने आप को बचा ले। कोई नहीं जानता इसके साथ क्या होने वाला है। अगर कोई जानने वाली हस्ती है तो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की हस्ती है जो अल अलीम है, अल आलिम है, अल अल्लाम है। अल्लाह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इस बात का इल्म हो। ये मेरे अल्लाह का इल्म है। आइए अल्लाह का कुरान अल्लाह की पहचान करवा रहा है। अल्लाह खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ समा को समझो, अल्लाह की पहचान करो, अल्लाह की मार्फत हासिल करो। एक मुसलमान का असासा है और सबसे बड़ी और अहम चीज़ एक मुसलमान के लिए यही है कि उसे अपने रब की मार्फत होनी चाहिए, अपने रब की पहचान होनी चाहिए। पता होना चाहिए मेरा रब सब कुछ जानता है, जर्रे जर्रे से आगाह है, हर बात से बखूबी इल्म रखता है, उससे कोई बात मख्फी और पोशीदा नहीं। हर मुसलमान और मोमिन का ये अकीदा और ईमान होना चाहिए। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, अल्लाह कहते हैं कोई नफ्स भी नहीं जानता कि उसने किस जगह के ऊपर मरना है। उसकी वफात का इल्म उसे नहीं है, किस जगह के ऊपर इसे मौत आनी है। अगर इंसान को पता चल जाए फलां जगह मैंने मरना है, उस इलाके का कभी रुख ही ना करे, उस इलाके में जाने का नाम ही ना ले। लेकिन अल्लाह कहते हैं कोई नहीं जानता किस मुकाम के ऊपर इसने मरना है, इसका आखिरी वक्त किस जगह पे आना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बीसियों नहीं सैकड़ों वाक़यात हमारी नज़रों के सामने है। इंसान पैदा कहाँ होता है, फौत कहाँ होता है, उसका वक़्त कहाँ पे आता है, जा कहीं और रहा होता है, मंजिल इसकी कहीं और होती है, लेकिन सफ़र आखिरत का आगाज़ हो जाता है। किसी को पता नहीं है कि किस जगह के ऊपर, किस इलाके के अंदर, किस खित्ते के अंदर इसकी मौत वाक़या होनी है। अपनी मौत के बारे में किसी इंसान को कोई इल्म नहीं है। अगर इल्म इस बात का है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को है। खलीफा मंसूर एक बड़े मारूफ मशहूर खलीफा हुए हैं। उन्हें एक ख्वाब आई और ख्वाब में उन्हें मलाकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो ये जो बादशाह थे मंसूर खलीफा मुसलमानों के, ये कहने लगे कि मलाकुल मौत मुझे ज़रा आगाह कर दे, इशारा दे दे कि मेरी मौत कितना वक्त बाकी है, कितना अरसा बाकी है, ताकि मैं कोई अच्छे अमल कर सकूं, मुझे आगाह कर दीजिए। मलाकुल मौत ने ऐसे इशारा किया। सुबह हुई, मंसूर ने अपने मुअब्बिरीन को बुला लिया, ख्वाबों की तबीर बताने वाले जो बड़े बड़े उलमा उन्होंने रखे होते थे, उनको बुला लिया कि भाई मुझे ख्वाब आई है, बताओ। अब मुअब्बिरीन कहने लगे कि जबरील जो इज़राइल का मलाकुल मौत का इशारा है, ऐसे इसका मतलब ये है कि आप 5 साल जिंदा रहेंगे, 5 साल के बाद मौत आ जाएगी। किसी ने कहा 5 महीने जिंदा रहेंगे, किसी ने कहा कि नहीं 5 दिन इससे मुराद है। ये बड़े परेशान हुए कि ख्वाब कैसी है। तबीर मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ बयान कर रहे हैं और दिल को भी लग रही है कि 5 का इशारा किया है, मतलब 5 दिन होंगे या 5 महीने होंगे या 5 साल होंगे, यही हो सकते हैं।
پھر یہ پریشان ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ تعالی اس دور کے بڑے علماء میں سے تھے, ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ مجھے بتائیے کہ یہ اس طرح مجھے خواب آئی ہے, اس خواب کی مجھے تعبیر بتائیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام صاحب کہنے لگے ملک الموت یہ اشارہ کر کے گئے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو علم نہیں دیا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. میں چاہے ملک الموت ہوں, میری روح ڈیوٹی لگائی گئی ہے روح قبض کرنے کے لیے, لیکن مجھے بھی پتہ نہیں کب کس کی روح قبض کرنی ہے. جب اللہ مجھے حکم دیتے ہیں تب میں اس کی روح کو قبض کرتا ہوں. 5 چیزیں ایسی ہیں کوئی بھی نہیں جانتا. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی موت کب واقع ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ العلیم العلام. اللہ مالک کائنات سے بڑھ کر علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے. ذرے ذرے سے آگاہ اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما کی ذات ہے. آئیے اللہ العلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. کائنات کے اندر جو کچھ ہے, کوئی ظاہر چیز ہے تب بھی ہمارے ہاں, کوئی باطن چیز ہے تب بھی ہمیں نظر آتی ہے تب بھی, یا ہمیں نظر نہیں آتی تب بھی, خشکی کے اندر کوئی چیز ہے تب بھی, تری میں کوئی چیز ہے تب بھی, سمندروں کی تہ کے اندر, دریاؤں کی تہ کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اسے بھی اللہ مالک کائنات جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. ایسی ذات اللہ مالک کائنات کی ہے, خالق ارض و سما کی ہے. پھر فرمایا رب کائنات نے, خالق ارض و سما نے قرآن مجید کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے, وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اس غیب کے خزانے جو ہیں ان کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے علاوہ غیب کی خبروں کو, باتوں کو بھی کوئی نہیں جانتا. یہ بھی میرے اللہ کے علم میں ہے. ڈھکی چھپی باتیں بھی اللہ جانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. جو کچھ خشکی کے اندر نظر آتا ہے, جو کچھ باہر کے اندر سمندروں دریاؤں کے اندر نظر آتا ہے یا نہیں آتا, ان سب کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. خشکی کے اندر ہمیں کتنی چیزیں نظر آتی ہیں, اور سمندروں دریاؤں کے اندر چھپی ہوئی کتنی چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. یہ سمندر خشکی کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن دنیا کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں جانتے ہیں. زمین کی چھاتی کے اوپر جتنی چیزیں ہیں, زمین کے نیچے جتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, سب کو جاننے والی ذات اللہ العلیم کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. جتنے بھی دنیا کے اندر درخت ہیں, ان درختوں سے جتنے پتے گرتے ہیں, ان گرنے والے پتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. فلاں درخت سے پتا گرا, فلاں جگہ کے اوپر گرا, اللہ مالک کائنات جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا, ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگ آج اکٹھے ہو جائیں اور دنیا کے درختوں کا حساب لگانا شروع کر دیں. کوئی چھوٹا درخت ہے, کوئی بڑا درخت ہے, کوئی جناب بڑی بڑی شاخوں والا درخت ہے, کوئی زمین کے ساتھ لگا ہوا درخت ہے, لیکن کوئی بھی ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا. مالک کائنات کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں روئے زمین پر کتنے درخت ہیں. درخت تو بڑی دور کی بات ہے, ان درختوں کے اوپر لگی ہوئی شاخیں, ان شاخوں کے اوپر لگے ہوئے پتے, اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جانتے ہیں. ان شاخوں کے اوپر کتنے پتے خشک ہیں, کتنے پتے تر ہیں, کتنے پتے خشک ہو کر ان شاخوں سے نیچے زمین کے اوپر گر رہے ہیں, اللہ مالک کائنات کے علم میں ہے. اللہ اسے بھی جانتے ہیں. فلاں درخت سے فلاں وقت کے اندر فلاں پتا گرا ہے, فلاں جگہ کے اوپر گرا ہے, اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ایسے اللہ کو چھوڑ کر, ایسی ذات کو چھوڑ کر غیروں کے علم کے دیوانے ہو جانا, یہ بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے. آئیے اللہ العلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما درختوں کو بھی جانتے ہیں, درختوں کے جو پتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں, درختوں سے جو پتے گرتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں. آپ کے علم میں کئی دفعہ اندھیریاں چلتی ہیں, طوفان آتے ہیں اور درختوں کے پتے بڑی تیزی کے ساتھ, بڑی سپیڈ کے ساتھ گرتے ہیں.
और कभी पतझड़ का मौसम आ जाता है, ख़ज़ां का मौसम आता है, फिर पत्ते ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे बारिश आ रही होती है, लेकिन मालिक कायनात के अलावा कोई इनकी काउंटिंग नहीं कर सकता। अगर जानता है कि इन दरख्तों से गिरने वाले पत्ते चाहे जितनी स्पीड के साथ गिर रहे हैं, जितनी तेज़ी के साथ गिर रहे हैं, अल्लाह के अलावा उन्हें कोई नहीं जानता। अगर जानता है किसी के इल्म में है तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जो अल्लाह अल अलीम है, अल आलिम है, अल अल्लाम है, उस अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आइए अल्लाह की मार्फत और पहचान कीजिए। मालिक कायनात फरमाते हैं इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़। ये दुनिया के अंदर जो दाने अनाज फेंकता है बंदा, किसान अपने फसल के अंदर फेंकता है दाने, बीज को फेंकता है, दुनिया के अंदर जितने भी दाने गिरते हैं वो किसान फेंके या किसी दरख्त से खुद ब खुद शाख से गिर जाए, रब्बे कायनात फरमाते हैं जितने भी ज़मीन की तह के अंदर दाने हैं उन दानों को भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। अल्लाह के इल्म में कितने दाने हैं। उलमाए मुफस्सिरीन ने कहा सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में ये है कि फलां फलां जगह के ऊपर फलां फलां हब्बा फलां फलां दाना गिरा है, फलां जगह के ऊपर ज़मीन के नीचे इतने नीचे फलां दाना पड़ा हुआ है। सिर्फ इतना ही अल्लाह का इल्म नहीं है, अल्लाह ये भी जानते हैं ये जो दाना गिराया जा रहा है ज़मीन के सीने को फाड़ कर ये ज़मीन के अंदर जा रहा है, इससे कौंपलें फूटेंगी कि ये या नहीं फूटेंगी, इस कौंपल निकलेगी, इसके ऊपर कितने दाने लगेंगे, ये दाने किस किस जगह पे जाएंगे, किसका अनाज बनेंगे, फिर दोबारा इनमें से कौन सा दाना बीज बनकर दोबारा इस जमीन के अंदर आएगा, कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के इल्म में है ये दाना जो फेंका गया है इससे कौंपल फूटेगी या नहीं फूटेगी, इसकी शाख बनेगी या नहीं बनेगी, इससे अनाज बनेगा या नहीं बनेगा, या नीचे ही ये खराब हो जाएगा, या इससे एक शाखें निकलेंगी और फिर गल्ला लोगों के लिए पैदा किया जाएगा। अल्लाह ये भी जानते हैं, वो अल्लाह अलीम है, अल्लाह अल्लाम है। इस अल्लाह से अपनी लो लगा ले, इस अल्लाह से अपना ताल्लुक पुख्ता कर ले। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कोई दुनिया की खुश्क चीज़, कोई तर चीज़, वो दाना है, पत्ता है, कोई भी चीज़ है, कोई खुश्क है या तर है, अल्लाह के इल्म में है। और अल्लाह के इल्म में सिर्फ नहीं है बल्कि अल्लाह ने एक किताब के अंदर उन सब को लिख छोड़ा है। किताब मुबीन में अल्लाह ने लिख दिया है कि ये फलां पत्ता है, ये खुश्क होगा, ये फलां पत्ता है, ये तर रहेगा, कितनी देर तर रहेगा, ये तरोताजगी फलां के चेहरे पर कितनी देर रहेगी, ये मायूसी के बादल फलां के चेहरे पर कब आ जाएंगे, अल्लाह जानते हैं। अल्लाह मालिक कायनात ने ये सारी बातें किताब मुबीन के अंदर लिख दी है। आइए अल्लाह की पहचान करें, अल्लाह की मार्फत हासिल करें। आलिमुल गैबि व शहादा, वो अल्लाह ज़ाहिर को भी जानता है और वो अल्लाह पोशीदा चीज़ों को भी, गैब चीज़ों को भी जानता है। फिर रब्बे कायनात ने खालिक़े अर्ज़ व समा ने अपनी पहचान यूँ भी करवाई है, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा। एक वक़्त ऐसा भी आने वाला है दुनिया के अंदर मर्जियाँ करने वालों, मन मानी की ज़िंदगी गुजारने वालों, अपनी खुशी और अपने तमा और अपने लालच और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वालों, एक वक्त ऐसा आएगा सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा। फिर वही आलिमुल गैब जो है, अल्लाम जो है, अल आलिम जो है, अल्लाह अल अलीम जो है, उसकी तरफ तुम्हें लुटाया जाएगा, अल्लाह के दरबार में तुम्हें लुटाया जाएगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते हो ना सब कुछ तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला फिर खबर देंगे, तुम ये करते रहे हो। वो तुम्हारे दिन के मामलात हो या रात की तारीखियों के मामलात हो, तुम्हारी हेरा फेरियां हो, बददियांतियां हो, खयानतें हो, जो कुछ तुम करते रहे हो फयुनब्बिउकुम, अल्लाह कहते हैं तुम्हें उसकी खबर अल्लाह देंगे। जो अल्लाह आलिमुल गैबि व शहादा है वो अल्लाह तुम्हें बता देंगे कि तुम ये करते रहे हो, तुम्हारा अमल ये था, तुम्हारा किरदार ये था, अल्लाह उसकी खबर तुम्हें देंगे। आलिमुल गैबि व शहादा वो अल्लाह की ज़ात है। आइए मालिक कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा कौन है? मेरा अल्लाह अल अलीम अल आलिम अल अल्लाम वो है जिससे कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। तुम कुछ छुपाना चाहो या जाहिर करना चाहो, अल्लाह से कोई बात पोशीदा नहीं है। जितना मर्जी छुप जाओ, जितने मर्जी छुप कर जराइम करने की कोशिश करो, अल्लाह तबारक व तआला उसे जानते हैं।
मेरी बात नहीं है, अल्लाह का कुरान है। मालिक कायनात फरमाते हैं, सूरह आले इमरान है, कुल ए प्यारे नबी आप इन लोगों को कह दीजिए, इन तुख्फू माफी सुदूरिकुम, अगर तुम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को अपने सीनों के अंदर छुपाओ, औ तुबदूहु, या तुम उसे ज़ाहिर करो, या अलमहुल्लाह, अल्लाह उसे जानता है। या अलमहुल्लाह, वो अल्लाह अल अलीम जानता है, अल्लाह के इल्म में है। सीनों में छुपा के बुग़्ज़ अनाद कीना फिरते हो, मोहब्बतें लोगों को कहते हो, और सीने के अंदर बुग़्ज़ अनाद और कीना नफ़रतें हैं। आओ अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं जानते हैं, दुश्मनियाँ दिलों के अंदर पाली हुई हैं, ज़बान से मोहब्बत का ऐलान है। रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा फरमाते हैं, जो तुम्हारे सीनों में छुपा हुआ है उसे छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह उसको जानने वाला है। अल्लाह से कोई बात मख्फी और पोशीदा नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए रब्बे कायनात फरमाते हैं, व यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान कितने बुलंद है, कितने बड़े हैं। अल्लाह कहते हैं जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, अल्लाह आसमानों की बातों को भी जानते हैं, ज़मीनों की बातों को भी जानते हैं। कोई बात मख्फी और पोशीदा नहीं, ऐसा अल्लाह अल अलीम है। आइए रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ो समा कैसा अल अलीम है। आयतुल कुर्सी रोज़ाना हम पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद तलावत करते हैं, अज़कार में पढ़ते हैं, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। काश हमें इन कलिमात की समझ आ जाए। इसमें इंसान इकरार करता है, हर नमाज के बाद ऐलान करता है, सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसमें इस बात का ऐलान करता है मेरा रब कौन है, जिसको मैंने रब मानना है, जिसको मैंने अपना इलाह मानना है, जिसको माबूदे बरहक मानना है, जो अल्लाह अल अलीम है, वो कौन है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो अल्लाह हमारे आगे वाले मामलात को भी जानता है और पीछे वाले मामलात को भी जानता है। हमारी अगली बातें भी उसे पता है, पिछली बातों का भी इल्म है। जो कुछ हमने अब तक किया है अल्लाह से मख्फी और पोशीदा नहीं, अल्लाह उसे जानते हैं। और जो कुछ मैं करने जा रहा हूं या करूंगा, अल्लाह के इल्म में वो भी है कि तू क्या करने वाला है, क्या करने जा रहा है। जब इंसान का ये अकीदा हो, उसे पता हो मैंने जो करतूत माजी में किए हैं मेरा अल्लाह जानता है, और जो मैं अब कर रहा हूं वो भी अल्लाह जानता है, और जो मैं करूंगा वो भी अल्लाह के इल्म में है। कभी भी अल्लाह की नाफरमानी और बगावत ना करे। ज़बान से इकरार के जरूर है, ऐलान जरूर है अल्लाह अल अलीम के, अल अलीम होने का दावा जरूर है कि अल्लाह मालिक कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा सब कुछ जानते हैं। मेरी पहले मामलात को भी जानते हैं, पिछले मामलात को भी जानते हैं, जो कर रहा हूं, जो करूंगा, सब कुछ अल्लाह के सामने है। अल्लाह से कोई मख्फी और पोशीदा नहीं है। लेकिन फिर भी बगावतें, सरकशियां, नाफरमानियां, अल्लाह की बगावतें करता चला जा रहा है। पता यह चलता है या तेरा कहना यह गलत है या तेरा अमल गलत है। अगर अल्लाह की मार्फत और पहचान हो तो कभी भी इंसान ऐसे ना करे, क्योंकि हमें पहचान नहीं है इसलिए हम ऐसे करते जा रहे हैं। आइए दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। रब का कुरान है, सूरह मुल्क है, मालिक कायनात फरमाते इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर। बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते हैं। दावा तो सब कहना डरते हैं, मैं कहूँगा मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ, आप कहेंगे हम भी डरते हैं, लेकिन अल्लाह निशानी उनकी बता रहे हैं। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, जो गैब में अपने रब से डरने वाले हैं, अल्लाह का डर उनके लिए है। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर, उन्हीं के लिए अल्लाह ने मग़फ़रत और अजर कबीर तैयार कर रखा है, बहुत बड़ा अजर उनके लिए है। वो कौन लोग हैं? अल्लाह कहते हैं व अस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू, तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो। अपनी बातों को मख्फी कर लेते हो, सिर कर लेते हो, छुपा लेते हो, किसी को पता नहीं चलने देते, कानों कान खबर नहीं होने देते। दीवारों से भी पर्दे किए हुए हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अल्लाह कहते हैं वासिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू भी, तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो अल्लाह की जात वो है जो तुम्हारे सीनों के अंदर छुपी हुई बातों को भी जानता है। अगर ये अकीदा होगा ना मेरा अल्लाह मेरी दिलों की बातों को, छुपी हुई बातों को भी जानने वाला है, फिर अल्लाह की नाफरमानी और बगावत नहीं करेगा, फिर अल्लाह का डर और खौफ होगा। अल्लाह कहते हैं छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह उसे जानते हैं। बंदा समझता नहीं, किसी को खबर नहीं होने दी मैंने, किसी को पता ही नहीं चला,
मैंने डंडी मार ली है, हेरा फेरी कर ली है, किसी का हक दबा लिया है, किसी का माल खा लिया है, किसी के ऊपर जुल्म कर दिया है, किसी की ज्यादती कर दी है, किसी के साथ जनाब झूठ बोलता जा रहा हूं, गिबतें करता जा रहा हूं, चुगलियां करता जा रहा हूं, बहतान बांधता चला जा रहा हूं, किसी को कानों कान खबर नहीं है, मेरी जुबान बड़ी चलती है, जो मर्जी कह दूं। अल्लाह कहता है तू कहता रह, जो कहना चाहता है कहता रह, लेकिन याद रख एक हस्ती ऐसी भी है जो अलीमुम बिदाती सुदूर है, तेरे सीनों की छुपी हुई बातों को भी जानता है। अल्लाह से क्या छुपाएगा और क्या क्या छुपाएगा, कैसे छुपाएगा? अल्लाह तो दिलों की बातों, छुपी हुई बातों को जानता है। अल्लाह अल अलीम अल आलिम अल अल्लाम को समझने की कोशिश करें। हमारा रब कौन है? आइए नाफरमानी करने से कबल इस बात पर गौर कर लिया करें कि हमारा अल्लाह हमारी इस नाफरमानी को जानता है। अल्लाह की बगावत करते हो, सोच लेना हमारा अल्लाह इसको जानता है। शराब पीने से पहले सोच लेना मेरा अल्लाह इसको जानता है। मिलावट करने से पहले सोच लेना मेरा अल्लाह इसको जानता है। रिश्तेदारों के ऊपर, गैरों के ऊपर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी करते हुए सोच लेना मेरा अल्लाह इसको जानता है। किसी का हक दबाते हुए, किसी का हक खाते हुए सोच लेना मैं कितना खा लूंगा, कितना दबा लूंगा। मेरा अल्लाह ऐसा है जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मेरी हर बात को जानता है। दुनिया वालों को धोखा दे लूंगा लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह के सामने कोई बात मख्फी और पोशीदा नहीं है। अल्लाह अल अलीम है। आइए अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, जो तुम अमल करते हो ना अल्लाह उसे जानते भी हैं, देखते भी हैं। अल्लाह से कोई बात मख्फी और पोशीदा नहीं है। एक वाक़या आपको सुनाऊंगा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मोमिन है। जितनी बातें भी मैं कर रहा हूँ आप सब कहेंगे बिल्कुल हमारा ईमान और यकीन है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए, ईमान में इजाफे के लिए नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बदर के कैदी लाए गए। इन बदर के कैदियों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम के दामाद अबुल आस, वो भी अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम के एक और भतीजे रिश्ते में लगते थे, नौफल, वो भी मौजूद थे। नबी कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बना दिया 20-20 औकिये चांदी जो है ये फिदिया दे और रिहाई ले ले। जो रिहा होना चाहता है 20 औकिया चांदी फिदिया दे और रिहाई लेके चला जाए। हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लम के चचा थे और ये बदर की लड़ाई से पहले मुसलमान हो चुके थे, पहले मुसलमान हो गए थे। रसूलुल्लाह सल्लम के भी इल्म में था कि अब्बास मुसलमान हो गए हैं, लेकिन इजहार नहीं किया था। इस जंग के अंदर शरीक भी नहीं होना चाहते थे। तारीख की मुस्नद रवायात है हजरत अब्बास बदर में नहीं आना चाहते थे, लेकिन रुआसाए मक्का ने मजबूर करके हजरत अब्बास को इस जंग के अंदर शरीक किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कैदी बन गए, रसूलुल्लाह सल्लम के सामने पेश हुए, कहने लगे मैं तो मुसलमान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया अब तुम जाहिरी तौर पर काफिरों की तरफ से गिरफ्तार हुए हो, लिहाजा कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे मेरा चचा हो, चाहे मेरा दामाद हो, चाहे आम उम्मती हो, कानून सबके लिए एक है। 20 औकिया चांदी लाए फिदिया, फिर रिहाई मिलेगी, वरना रिहाई नहीं मिलेगी। हजरत अब्बास कहने लगे मेरे तो हालात बड़े कमज़ोर हैं, मेरे पास तो माल इतना है नहीं कि मैं दूं। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया चचा अपना फिदिया भी दो, अपने भतीजे अबुल आस का भी फिदिया आप ही दो, और अपने भतीजे नौफल का फिदिया भी आप ही दो। 3 बंदों का फिदिया आपके जिम्मे है, वो शायद ना दे सकें, आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़े हैं, कौम के बड़े हैं, कबीले के बड़े हैं, अपनी कौम के बड़े हैं, लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है, उनका फिदिया भी आप अदा करें। हजरत अब्बास कहने लगे मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे चचा जब आप मक्का से बदर के लिए आ रहे थे तो जो मेरी चची थी आपने उनको एक गड़ा खोदकर उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के छपाकर वहाँ पे रख कर आ गए थे, और अपनी बेगम को यानी मेरी चची को बताकर आए थे अगर इस जंग में मेरे साथ हरज मरज हो जाए तो यहाँ पे मैंने पैसा रख दिया है, दिरम और दिनार रख दिए हैं, इनको इस्तेमाल कर लेना, ये तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएंगे। हज़रत अब्बास के रोंगटे खड़े हो गए।
हैरान हो गए, कहने लगे भतीजे आपको कैसे पता चला? नबी कायनात ने फरमाया नब्बानी अल्लाहु अलीमुल खबीर, मेरे अल्लाह अल अलीम ने अल खबीर ने मुझे इतला दे दी है कि चचा ऐसे माल छुपा के आया था, ए अब्बास वहां से माल निकालो और फिदिया पेश करो। वो अल्लाह जो तेरी ढकी छुपी बातें जो दुनिया वाले कोई नहीं जानते उन्हें भी जानते हैं। हजरत अब्बास ने सिर्फ अपनी बीवी को बताया था, इस जगह पे मैंने दिनों दिनार छुपाए हैं, अगर जंग के अंदर मैं मारा जाऊं तो ये इस्तेमाल कर लेना, तुम्हारे काम आएंगे, इससे घर का निजाम चला लेना, अगर मैं वापस आया तो फिर मैं खुद निकाल लूंगा। अगर इन ढकी छुपी बातों को भी कोई जानने वाला है तो वो मेरा अल्लाह अल अलीम, अल्लाह अल अल्लाम और अल्लाह अल्लामुल गयूब है, वो जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगर तेरा मेरा अकीदा बन जाए कि हमारी इन बातों को अल्लाह जानते हैं, कभी भी हम अल्लाह की नाफरमानी और बगावत ना करें। आइए कुरान मजीद की एक और आयत करीमा अपने दिलों पर हाथ रख कर सुनिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा एक मोमिन को हिलाने के लिए काफ़ी है। सूरह काफ है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं वलक़द खलक़नल इंसाना, हमने इंसान को पैदा किया है, वलक़द खलक़नल इंसाना, हमने इंसान को पैदा किया है, व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, जो कुछ इसके नफ्स के अंदर, इसके दिल के अंदर वसवसे पैदा होते हैं, अल्लाह कहते हैं हम वो भी जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तू जुल्म करके कहता है कोई नहीं, आज लोगों का माल दबा के कहता है कोई नहीं, आज ज्यादतियां करके कहता है कोई नहीं, कत्लो गारत के बाजार गर्म करके कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, मेरे मामलात छुप गए हैं और लोगों ने पर्दे ढाल दिए हैं तो कोई ज़ाहिर करने वाला नहीं। अल्लाह कहते हैं नालम, हम जानते हैं, हम जानते हैं तेरे दिल के अंदर जो वसवसे पैदा होते हैं, ख्यालात आते हैं, उन ख्यालात को भी हम जानते हैं और हम आगाह हैं नफ्स के हर शरारत से, हर मामले से हम आगाह हैं, हमसे कोई बात मख्फी और पोशीदा नहीं है। जो अल्लाह तेरे वसवसों को भी जानता है, तेरे ख्यालात को भी जानता है, उस अल्लाह से तेरे पाप और ऐब और गुनाह, तेरे कत्लो गारत और जुल्म, ज्यादतियां, नाइंसाफियां कैसे मख्फी और पोशीदा रह जाएंगी। अल्लाह अल अलीम को समझने की कोशिश करें। हमारा रब अल अलीम है, वो सब कुछ जानता है, कल क़यामत के दिन वो इसकी खबर कर देगा। और कल क़यामत के दिन जो मुअज़्ज़ज़ लोग होंगे, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। दुनिया में तो बंदा बनता है, हर बंदा ही कहता है मैं बड़ा अच्छा हूं, हर बंदा अपनी अच्छाई के गुण गाता हुआ नजर आता है कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, लेकिन अल्लाह जानते हैं कौन अच्छा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बात तो इतनी काफ़ी थी कि अल्लाह के नज़दीक तकवे वाला, जिसके पास तकवे की दौलत ज़्यादा है, वो ज़्यादा मुकर्रम, मोहतरम, इज़्ज़त वाला है। लेकिन अगर आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, याद रखो तुम्हारा ज़हरी तकवा, तुम्हारी ज़हरी बातें अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं रखती, वो अल्लाह जानने वाले हैं। ज़ाहिरी तकवा कितना है, हकीकी तकवा कितना है, अल्लाह ताला जानते हैं तुम्हारे मामलात को, तुम्हारे दिलों में छुपी हुई बातों को भी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह खबर रखते हैं, जानते हैं, उससे कोई बात मख्फी और पोशीदा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीर। आयतें तो बहुत हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आपके सामने रखूँ। बात को इख्तसार करते हुए एक आयत और एक हदीस मुबारक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी के अंदर किताबुज़्ज़ुहद के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह ताला हसन और सही सनद के साथ, हसन सनद के साथ इसको बयान फरमाया है। हज़रत अबू कबशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हम मौजूद थे। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर ने फरमाया, उहद्दिसुकुम हदीसन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक हदीस का तज़किरा करता हूँ। फहफ़ज़ूहु, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसे खूब याद कर लेना। फहफ़ज़ूहु, इसे अच्छी तरह याद करना, इन बातों को पल्ले बांध लेना, इनको अपने आप से जुदा ना करना। वो कौन सी बातें थी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नमद दुनिया ली अरबाति नफरिन, दुनिया 4 किस्म के लोगों के गिर्द घूमती है। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। इन्नमद दुनिया ली अरबाति नफरिन, 4 किस्म के लोग हैं। पहली किस्म के कौन? अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला माल अता करते हैं और इल्म अता फरमाते हैं।
अल्लाह ने माल भी दिया, इल्म भी दिया। इल्म से मुराद ये है कि उसे पता था कि ये हलाल है, ये हराम है। माल उसने कमाया लेकिन हलाल व हराम की तमीज़ की, हराम नहीं कमाया, हलाल कमाया। उसके पास माल था, उस माल को उसने अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं उसने किया, बल्कि माल होने के बावजूद, कारोबार होने के बावजूद, बिजनेस होने के बावजूद अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं रहा। माल भी था, इल्म भी था, दोनों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता की है। ये बंदा पहली किस्म है। फरमाया फ़हाज़ा बि अफ़ज़लिल मनाज़िली, अल्लाह ताला ने जो दुनिया के अंदर इंसानों की किस्में बनाई हैं, उन किस्मों में से सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसान ये है जिसको अल्लाह माल भी अता करे और इल्म भी अता फरमा दे, पहचान भी अता फरमा दे, हलाल और हराम की तमीज़ भी अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मार्फत और पहचान भी दे दे। ये दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान है। इसकी खसूसियत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इस बंदे के अंदर 3 खसूसियत होंगी। फ़हुवा यत्तक़ी फ़ीही रब्बहू, माल है, दौलत है, इल्म है, अपने रब से डरता है। फ़हुवा यत्तक़ी रब्बहू, उसके माल ने उसके अंदर गुरूर पैदा नहीं किया, तकब्बर पैदा नहीं किया, हलाल और हराम की तमीज़ को ख़त्म नहीं किया। इल्म था, उसने इल्म ने इसको अंदर गुरूर और तकब्बर पैदा नहीं किया। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी बातें नहीं करता था, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए बातें करता था, अमल भी करता था। फ़हुवा यत्तक़ी रब्बहू, अपने रब का तकवा इख्तियार किया था। व यसिलु फ़ीही रहीमा, दूसरी इस नेक बंदे की, जो दुनिया में अल्लाह ने जितने बंदे भेजे हैं उन बंदों में अफजल और आला बंदे हैं। फरमाया दूसरी उसकी सिफ्त क्या है? वह यासिलु फीही रहीमा, वो इसके अंदर सिला रहमी करता है। ये नहीं कि 4 आने आ गए, अब रिश्तेदारों को रिश्तेदार ही नहीं समझता, अब हसीयत खत्म हो गई है कि मेरे पास दौलत आ गई है, पैसा आ गया है, कोठी मिल गई है, मकान मिल गया है, गाड़ी आ गई है, अब रिश्तेदारी से अच्छे नहीं लगते, अब लोगों के सामने अपने रिश्तेदारों से इनकार कर रहा है। नहीं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, बस मिलने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मालो दौलत आ गया, इल्म है, रिश्तेदारी इसने नहीं तोड़ी, बल्कि सिला रहमी करता रहा है। तीसरा और आम खूबी फरमाया व यअलमु लिल्लाहि फीही हक़्क़ा, वो इसमें अल्लाह का हक पहचानता था, जानता था अल्लाह का हक क्या है। दौलत अल्लाह ने दी है, ज़कात की अदायगी करता रहा है, ज़कात हीलो बहानों से नहीं चुराता रहा, खाता रहा। आज बहाने तराशते हैं, ऐसे ना करें, ऐसे ना कर ले, ऐसे ना खर्च करें, इस तरह खर्च करने से ज़कात क्या अदा नहीं हो जाएगी। फलां को मैंने कर्ज दिया था, लोग मसले आकर पूछते हैं मौलवी साहब अब वो कर्ज वापस नहीं कर रहा, क्या मैं उसको ज़कात की मद में माफ ना कर दूं? चोर दरवाजे ढूंढते हैं आकर। व यअलमु लिल्लाहि हक़्क़ा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इल्म भी अल्लाह ने अता किया, दौलत भी अता की, इसमें अल्लाह के हक को जानता था, पहचानता था, ज़कात की अदायगी करता था। ये बंदा कौन है? फ़हाज़ा बि अफ़ज़लिल मनाज़िली, जितनी भी मंजिलें हैं, मुकाम है, उनमें सबसे आला मंजिल वाला ये इंसान है। दूसरी किस्म के लोग, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अल्लाह ताला जिसको इल्म अता फरमा दे, माल नहीं दिया, इल्म है, उसको पता है ये हलाल है, ये हराम है, अल्लाह की इबादत ऐसे करनी है, अल्लाह के आगे झुकना ऐसे है, अल्लाह का हुक्म ये है, अल्लाह के रसूल का हुक्म ये है, इन बातों पे मैंने अमल करना है, इन बातों से मैंने बचना है, इन बातों के ऊपर वो अमल करता है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये बंदा दिल में ख्वाहिश करता है, तमन्ना करता है, वो फ़लाँ हाजी साहब की तरह, शेख साहब की तरह, सेठ साहब की तरह, नवाब साहब की तरह, फ़लाँ बंदे की तरह अगर मेरे पास भी माल होता ना, मैं भी अल्लाह के रस्ते में देता। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं ये नियत कर रहा है, अल्लाह इस इल्म व अमल की बना पर, इसकी नियत पर भी उसके बराबर इसे अजर व सवाब अता फरमा रहे हैं। फरमाया फ़अज्रुहुमा सवाउन, जिसको इल्म भी दिया, माल भी दिया, उसने अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया, ये बंदा जिसके पास सिर्फ इल्म है लेकिन माल नहीं है, अल्लाह ताला इसको और उसको अजर व सवाब में बराबर कर देगा। फ़अज्रुहुमा सवाउन, अजर बराबर हो जाएगा। तीसरी किस्म के लोग, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं एक वो बंदा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ना माल, अल्लाह ने माल दिया लेकिन इल्म नहीं दिया। पहले के पास माल भी था, इल्म भी था, दूसरे के पास सिर्फ माल इल्म था, माल नहीं था। अब तीसरा बंदा जिसके पास माल है, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, उसके पास माल है। अब इस माल की वजह से इसमें गुरूर है
کیونکہ علم نہیں ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، فرعون بن بیٹھا ہے، جناب ظلم کو ظلم نہیں سمجھتا، زیادتی کو زیادتی نہیں سمجھتا، یہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر لگا ہوا ہے، شراب نوشی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، اللہ کی نافرمانی اللہ حاضل کیا سب کچھ کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یتقی فیہ ربہ، اس میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، ولا یصل فیہ رحمہ، اس میں صلہ رحمی نہیں کرتا، ولا یعلم للہ فیہ حقہ، اس میں اللہ کا حق بھی نہیں پہچانتا۔ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا عشر ہے، اتنا اللہ کے راستے میں دینا ہے، اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، اس کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور فرماتے ہیں فہذا باخبث الناس بالمنازل، منزلوں کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے خبیث ترین انسان یہ ہے۔ جس کے پاس مال ہے اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، حالانکہ پہچان سکتا تھا، وسائل تھے، پہچان سکتا تھا۔ چوتھی قسم کا نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس کو نہ اللہ نے مال دیا نہ اللہ نے علم دیا، مال بھی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے، اور یہ مفلس ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود پھر بھی اس کے اندر انا ہے، غرور ہے، تکبر ہے، دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر میرے پاس مال ہوتا شرابیں اڑاتا، اگر میرے پاس مال ہوتا یہ کر دیتا وہ کر دیتا، وہی کام جو نافرمان اور باقی کرتے ہیں۔ اس غریب مسکین فقیر آدمی نے دل کے اندر خواہشات لے کر انگڑائیاں لے رہی ہیں، اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی یہ سب کچھ کرتا۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور فرماتے ہیں فہذا باخبث المنازل، منزلوں کے اعتبار سے یہ بندہ بھی بد کردار اور برا اور اللہ کے نزدیک خبیث ترین بندوں میں سے ہے۔ دو لوگ عظیم ترین لوگوں میں سے، دو خبیث ترین لوگوں میں سے۔ انسان یہاں پہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے میں یہ برائی کروں تو وہ اللہ جانتا ہے، اسی وجہ سے اسے اخبث الناس کہا ہے۔ اگر انسان خواہش کرتا ہے میرے پاس مال و دولت ہو، میں ہر سال اللہ کے گھر جاؤں، میرے پاس مال و دولت ہو، میں غریبوں مسکینوں پہ خرچ کروں، میرے پاس مال و دولت ہو، مساجد مدارس پہ خرچ کروں، اس کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی اس خواہش کو بھی نیت کو بھی جانتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے یہ منزلوں کے اعتبار سے بہترین منزلت پر ہے۔ اور وہ انسان جس کی خواہش بری ہے، نیت بری ہے، ارادے برے ہیں، ہے بھی پاس کچھ نہیں، تمنا اور خواہش بھی بری رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بدترین انسان ہے۔ اس لیے اگر مال و دولت نہیں تو کم از کم ارادے تو اچھے رکھیں، نیتیں تو اچھی رکھیں، وہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جو کچھ تمہاری جانوں میں ہے نا اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ فاحذروہ، اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، وہ اللہ بڑا ہی بخشنہار ہے، بڑا ہی بردبار ہے۔ اللہ مالک کائنات کے علم کی وسعتیں کوئی نہیں ہے، لا محدود علم رکھنے والا ہے، ایسا علم جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کسی کے پاس علم ہوگا تو محدود ہوگا، لیکن اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اس اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب اللہ کی علم کی وسعتوں کا علم ہو جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گا، پھر کبھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی و بغاوت نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنوں کے اندر معرفت الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔